علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دیکھیے جہاں زیب علی کی رپورٹ۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بھنڈی 130 روپے کلو، عربی 150 روپے فی کلو، ٹماٹر، آلو اور پیاز کے علاوہ پھلوں میں کیلے 100 روپے درجن، خوبانی 200 روپے کلو، آلو بخاری 320 روپے کلو تک قیمتیں سن کر غریب آدمی خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گوشت کھانا تو دور کی بات، اب سبزی بھی کھانا مشکل ہو گئی ہے۔ ہر چیز سبزی مہنگی جا رہی ہے اور غریب آدمی کے پوچھ سے دور ہے۔ غریب آدمی کھا ہی نہیں سکتا سبزی لے کے۔ دوسرے فروٹ ہیں جیسے آلو بخارا ہے، اب تو یہ بالکل ہی ایسا ہو گیا کہ سونے کے دام۔ اب 320 روپے کلو آلو بخارا، وہ بھی کوالٹی وائز اتنا اچھا نہیں ہے، کیا بچوں کو لے کے جائیں؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے ہی کاروبار اتنے ٹھپ ہوئے ہیں۔ غریب عوام جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے اس کا روزمرہ کی اشیاء خریدنا۔ حکومت اس پہ کنٹرول کرے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے غریب کی ایک وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ پورے سال نظر ہی نہیں آتی ہیں جو ان منافع خوروں کے خلاف کارروائی کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ حیدرآباد شہر میں منافع خور سبزی اور پھل فروشوں کے خلاف کارروائی کر کے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی لا کر عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز، حیدرآباد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پھل، سبزیوں، گوشت سمیت دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ محسن سلیم کی رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ سبزیاں، پھل سمیت روزہ مروزہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے غریب عوام کی قوت خرید سے باہر ہے۔ مہنگائی کی لہر نے سفید پوش ملازمین سمیت غریب عوام میں سخت پریشانی اور مایوسی دو چار کر دیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سٹی سمیت دیگر علاقوں میں سبزیاں، پھل، دودھ، دہی اور گوشت، انڈے سمیت دیگر اشیاء خورد نوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ خصوصی ٹماٹر کی اڑان آسمانوں تک پہنچ گئی ہے۔ مختلف پھل، سبزیاں، آلو اور پیاز، ٹماٹر سمیت دیگر قیمتیں بھی غریب عوام کی قوت سے باہر ہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ نے چپ سانس لے رکھی ہے اور مہنگائی کے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں، جبکہ دکانداروں نے بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ سیاسی و سماجی اور عوامی حلقوں نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ کیمرامین افراد سے آپ کے ساتھ محسن سلیم، سائٹ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ پشاور میں ٹماٹر کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ شہری کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ریلیف کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ عید سے پہلے جو ٹماٹر آئے ہوئے ہیں کافی اس کو پر لگ گیا ہوا ہے، جس طرح پیاز ٹماٹر بھی کافی مہنگا ہو گیا، 80 روپے کلو پہ روک تو رہا ہے۔ یہ غریب عوام کے بس کے کام نہیں ہے۔ عید آنے والی ہے تو یہ اور بھی مہنگا پڑ گیا، تو ضرورت بھی زیادہ پڑ گئی ہے ٹماٹر کی۔ حکومت کو چاہیے کہ ٹماٹر کو اور بھی سستا کرے۔ ٹماٹر تقریباً ایک ہفتے پہلے 40-50 پہ تھے اور اب 100-120 پہ مل رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ جمپ ہے، بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں، یہ اس کو جو ہے ڈیلی لائف کے جو زندگی ہے وہ بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ تو ٹھیک بات ہے۔ یہ ایک مہینے سے یہی ریٹ چل رہا ہے۔ ٹماٹر کو مہنگا کیا ہوا ہے انہوں نے اور ریٹ بڑھائے ہوئے عید کے آنے سے پہلے ہی، اور اس کے علاوہ اور بھی سبزیاں مہنگا ہوا ہے۔ اور یہ تو عید و قربان میں یہ ٹماٹر بہت یوز ہوتا ہے، اس کا یوزز زیادہ ہوتا ہے۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کا بحران شدید ہو گیا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ کراچی والے 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ گئے، لیکن حکومت خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ نوٹس پر نوٹس لیکن عمل درآمد صفر۔ وزیر اعظم کی جانب سے شہر اقتدار میں بجلی کی طویل بندش پر نوٹس لینا بھی کسی کام نہ آیا کہ الیکٹرک کے کانوں پر جوں نہ رینگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات بھی کئی گھنٹے بجلی غائب رہی۔ کراچی میں کہیں 8 تو کہیں 12 گھنٹے بجلی غائب ہونے کی وجہ سے شدید گرمی میں شہریوں کو دن میں چین ہے اور نہ رات میں سکون۔
कराची में कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, मलीक, लियारी, लांडी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर का कोई इलाका इस वबाल से महफूज नहीं। शहरियों का कहना है कि इन्हें अब तक इस आफत से रिलीफ नहीं मिल सका। शहरी इक़्तिदार का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शहरी और दई इलाकों में घंटों बिजली बंद होना मामूल बन गया। मुरम्मती काम का बहाना अलग बनाया जाता है। शहरियों की शिकायत सुनने को कोई तैयार ही नहीं। शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में आवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। लाहौर और पेशावर में भी लोड शेडिंग अरूज पर है। दीगर शहरों की तरह कमालिया में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में वक्फे से गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी के सताए हुए शहरी गम और गुस्से का शिकार हैं। शहरियों का कहना है सुबह से बिजली नहीं है, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली नहीं है। कल शाम 7 बजे से गई, रात 10 बजे आई है। बड़ा बुरा हाल है, बच्चे परेशान हैं, पानी की वजह से बुरा हाल है, बिल्कुल जानवर प्यासे हैं। बिजली की लोड शेडिंग गैर एलानिया हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, कभी घंटा बगैर एलानिया हो रही है। गर्मी से बुरा हाल है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली जारी है, जिससे न सिर्फ कारोबार बंद है बल्कि शदीद गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। 1 घंटा बिजली आती है और कई घंटे बिजली गायब रहती है, जिससे न सिर्फ शहरी शदीद परेशान है बल्कि किसानों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि आला अफसरान से अपील है कि गर्मी शिद्दत से पड़ रही है, मेहरबानी फरमाकर गैर इलानिया लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। जैकबाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। बिजली की बंदिश के बायस पीने के पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। जानिए दोस्त मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में सूरज सवा नेज़े पे आ गया। गर्मी का दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड से भी तजावज कर गया। गर्मी में आए रोज इजाफे के बावजूद सेपको की जानिब से 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके बायस शहरी दौर अजाब में मुब्तला हो गए हैं। बिजली के तातुल के बायस एक तरफ तो कारोबारी जिंदगी मुतासिर है तो दूसरी जानिब मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुअत्तल है। गर्मी और बिजली के सताए शहरी घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम में फैली बेचैनी खत्म की जाए। कैमरा मैन अयास उमर के साथ दोस्त लाशारी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई। मुसाफिरों से मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं, जिससे शहरी और मुसाफिर परेशान हैं। राव फखरुज्जमान की रिपोर्ट। आए रोज बढ़ती महंगाई से जहां दीगर तबकात परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, किरायों में कमी ना की गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टरों ने अपने मन मर्जी के रेट तय कर लिए। इसी हवाले से मुसाफिरों का कहना है, जैसे पेट्रोल की कीमतें कम हुई, हुकूमत ने, ट्रांसपोर्टर्स ने किराया कम नहीं किया, लेकिन जैसे ही पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हुई तो ट्रांसपोर्टर हजरात ने किराया डबल कर दिया, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि किरायों की कमी का ऐलान किया जाए और इस पर अमल दरामद भी करवाया जाए, ना कि सिर्फ बातों तक रखा जाए। और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। कोरोना की वजह से हालात सब परेशानी है। जहाँ पर 500 रुपये किराया लगता था वहाँ पर 1000 रुपये लगते हैं। जी, शहरियों का यही कहना है कि जब पेट्रोल के रेट सस्ते किए गए थे तो किराए में कोई कमी ना की गई। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो किराए में भी 2 गुना इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। और उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि न सिर्फ किरायों में कमी की जाए बल्कि इस पर अमल दरामद भी कराया जाए, ताकि उन्हें सफरी सहूलियात मुयसर आ सकें। कैमरा टीम के हमरा फखरुज्जमान, नुमाइंदा, सच न्यूज़, कैरोड, पक्का। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डियों के लश्कर भगाने में मसरूफ हैं। कोरोना से जान छूटी न थी कि एक और आफत आन पड़ी। मुल्क में टिड्डी दल के हमलों में कपास, मिर्च की फसलों और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। कहीं तो इस लश्कर ने किसानों की साल भर की कमाई को चट कर दिया है। चारों सूबों में टिड्डी दल ने तबाही फैला रखी है। दरख्त टन मंड हैं तो फसलों का नामो निशान नहीं रहा। सिंध के जिला नवाबशाह में टिड्डी दल के हमले से कपास, गन्ना, ज्वार और प्याज की फसल को नुकसान हुआ। थर पारकर में भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ दरख्त मुतासिर हुए। तमाम मकामी अफराद आज खुद टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। थर पारकर के रिहायशियों ने हुकूमत से मुतासरा इलाकों में स्प्रे करने का मुतालबा कर दिया। NDMA का कहना है कि मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल के हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तमाम सरकारी सतह पर टिड्डी दल के खिलाफ स्प्रे मुहिम जारी है। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब 4 और सिंध में 7 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हुए हैं। हुकाम का कहना है कि 1128 टीमें लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,50,000 एकड़ रकबा का सर्वे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 4,900 एकड़ रकबे का टिड्डी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट किया गया है।
बलूचिस्तान में 3200 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया और पंजाब में 100 एकड़ पर स्प्रे किया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1000 एकड़ रकबे की ट्रीटमेंट हुई है, जबकि सिंध में गुज़िश्ता रोज 600 एकड़ रकबा ट्रीटमेंट किया गया। NDMA ने बताया कि अब तक पूरे मुल्क में 4,97,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। मक्के की फसल के इमदादी रेट मुकर्रर न होने से पंजाब की गला मंडियों में मक्के का रेट 1400 रुपए फी मन से कम होकर 700 रुपए फी मन रह गया, जिससे किसानों को 25,000 फी एकड़ पैदावार में खसारे का सामना है। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट। पंजाब में मकई की फसल कटाई के बाद गल्ला मंडियों में पहुंच गई, मगर हुकूमत की जानिब से मकई के इमदादी रेट मुकर्रर ना होने पर फसल का रेट 1400 रुपए फी मन से कम होकर 700 रुपए फी मन रह गया। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल ने हुकूमत से मकई के इमदादी रेट मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट से अपील है कि फौरी तौर पर मकई की इमदादी कीमत का ऐलान करे और किसानों को जो नुकसान हुआ उसका अजाला करे, वरना किसान एहतजाज पर मजबूर होंगे। गल्ला मंडियों में मकई के रेट कम होने से किसानों को 25,000 फी एकड़ पैदावार में खिसारे का सामना है। मक्की का रेट जो है वो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए तक चल रहा है। हुकूमत को चाहिए इसकी फौरी तौर पर इमदादी कीमत मुकर्रर करे ताकि किसान के जो कम से कम अखराजात हो रहे हैं वो तो पूरे हो जाएं। किसानों का कहना है कि गल्ला मंडियों में मकई की गिरती कीमतों से उनकी फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हुए। हुकूमत मकई के इमदादी रेट मुकर्रर करने का ऐलान करे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। पिशावर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा होने लगा, जबकि सूबे भर में वैक्सीन भी न होने के बराबर है, जिसके बायस शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। अवैस महमूद की रिपोर्ट। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आवारा कुत्तों का राज बरकरार। आए रोज कुत्तों के काटने के वाकयात सामने आने लगे, जिसकी वजह से शहरियों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। ये मेरे साथ तकरीबन एक हफ्ता पहले गुजरा है और मैं इधर गुलबाग नंबर 4 में रहता हूँ बेटा, और वहाँ पे तकरीबन 7 कुत्ते हैं। जहाँ एक तरफ कुत्तों के काटने का खौफ सर पर मंडला रहा है, तो वहीं पर पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन ना होने के बराबर है, जिसका शिकवा शहरी भी करते हुए नजर आते हैं। कि रात के औकात में 5 से 12 कुत्ते यहाँ पे फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर वो काट लें, वैक्सीन भी ख़त्म हो चुकी हैं और इधर उधर आस पास भी नहीं मिल रही, तो जिसकी वजह से अवाम को बहुत परेशानी है इस पर। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक अस्पताल में कुत्तों के काटने की वैक्सीन वाफर मिकदार में मौजूद है। एंटी रेबीज वैक्सीन जो डॉग बाइट वैक्सीन आप कह रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है। अभी इस टाइम हमारे पास 1000 वाइल्स पड़ी हैं। थोड़ा सा डेटा मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो 350 से लेकर 400 के दरमियान डॉग बाइट्स आती हैं हर महीने एलआरएच में। पिशावर की सबसे बड़ी अस्पताल रीडिंग अस्पताल में कुत्ते के काटने की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन मुज़ाफ़ाती इलाकों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने से वहाँ की अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पिशावर। लिया के तारीखी शहर पीर जुगी शरीफ में 35 साल कबल बनाई जाने वाली डिस्पेंसरी को न तो अपग्रेड किया गया बल्कि ताले लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। तारीखी शहर पीर जगी शरीफ की वह डिस्पेंसरी 1985 में बनाई गई थी। 3 दहाइयां गुजरने के बावजूद ये डिस्पेंसरी को न तो अपग्रेड किया गया, न ही इसकी बिल्डिंग दोबारा बनाई गई, बल्कि 4 दीवारी तक न बनाई गई। इन 3 दहाइयों में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी ना यहाँ पहुँच सका, बल्कि मौजूदा अमला भी दूसरे इलाकों में ट्रांसफर करके डिस्पेंसरी को ताला लगा दिया गया, जिसकी वजह से मरीज इमरजेंसी की सूरत में 20 किलोमीटर दूर THQ अस्पताल कोट सुल्तान का रुख करते हैं या फिर 40 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया की राह लेते हैं। बाज़ औक़ात कई मरीज तवील सफर की वजह से रास्ते ही में दम तोड़ देते हैं। न इसकी बिल्डिंग बनाई गई और ना ही कि इसको अपग्रेड किया गया। हमारे बाज़ औक़ात इमरजेंसी की सूरत में हमें या तो कोट सुल्तान जाना पड़ता है या फिर लिया का रुख करना पड़ता है, और लंबे सफर की वजह से बाज़ औक़ात मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इंसानी जिंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, लेकिन जमीनी खुदाओं ने इसे भी दुश्वार बना दिया है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। कसूर की सब तहसील चूरिया में डिस्पेंसरी जमशेद खुर्द में सहूलियात का फुकदान है। न डॉक्टर हैं न ही अतपियात, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान है।
جونیئر اورل ڈسپنسری جمشید خورد میں سہولیات کا فقدان ہے، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، سہولیات نہ ہونے کے باعث مریض عطائیوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہے۔ حکومت کی طرف سے کروڑوں روپے فنڈ تو آتے ہیں مگر کہاں لگتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ یہاں پر کسی بھی مرض کا نہ سیرپ اور نہ کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے اور نہ کوئی یہاں پر MBBS ڈاکٹر موجود ہے۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یہاں پر فرسٹ ایڈ کا کوئی انتظام نہیں لہذا حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر اور میڈیسن کا انتظام کیا۔ ریکویسٹ ہے کہ سانو ایتھے نا میل تقریباً ایک ڈاکٹر دیتا جائے۔ اہل علاقہ کی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر صحت سے اپیل ہے کہ یہاں پر میل اور فیمیل ڈاکٹر اور ادویات مہیا کی جائیں تاکہ مریضوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض محمود، سچ TV چونیا۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی، مختلف ٹریفک حادثات میں متعدد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ تیز رفتاری اور ڈرائیورز کی غفلت حادثات کا سبب، مختلف ٹریفک حادثات میں کئی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ منکیرا میں جھنگ بکر روڈ پر ٹرک کی رکشے کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ قصور میں دیپال پور روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سوار ٹرالر کی زد میں آ گیا۔ حافظ آباد میں تیز رفتار کار نے 3 افراد کو کچل ڈالا۔ خیرپور میں گمبڑ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے گر کر مسافر جاں بحق ہو گیا۔ لوئر دیر میں تیمر گرا بائی پاس پر آئل ٹینکر موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے بعد کھائی میں گر گیا۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعہ ٹینکر کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پینڈ دادن خان میں ریلوے پھاٹک پر 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر کی اہم اور مرکزی شاہراہ چاچڑا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں غفار رشید۔ ظاہر پیر کی اہم اور مرکزی شاہراہ چاچڑا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور جگہ جگہ گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ یہ پہلے سنگر روڈ تھی۔ کاف لیگ کے دور حکومت کے شروعات میں شہریوں کی سہولیات کے لیے اس کو اپ گریڈ کر کے 2 رویہ کارپیٹ روڈ بنوائی گئی۔ کافی عرصہ یہ روڈ کارآمد ثابت ہوئی لیکن پچھلے چند سالوں کے دوران اس کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ چاچڑا شریف دریائے سندھ کے مقام پر 2 اضلاع کو ملانے کے لیے پختہ پل تعمیر کیا گیا مگر اس سے منسلک بے نظیر روڈ تاخیر سے مکمل ہوا، لیکن اس پل کو بھاری ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا جن کا گزر اسی روڈ سے ہوا جس کی وجہ سے ظاہر پیر کی یہ اہم شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہوئی۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو جلد بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کوئی مسائل نہ ہو۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس 2 رویہ سڑک کو جلد مرمت کر کے بہتر سفری سہولیات میسر کی جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غفار رشید، سچ نیوز، ظاہر پیر۔ یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ درجنوں دیہاتوں کو ٹھل حمزہ سے ملانے والی اہم سڑک نظام آباد عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیاض احمد۔ درجن بھر سے زائد دیہات کو ٹھل حمزہ سے ملانے والی اہم سڑک نظام آباد عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ سڑک پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ حکومتی نمائندے خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف نے مزید بتایا کہ ایسی سڑک ساری 2010 تو بڑی ہے، ہوں تو بعد کوئی نہیں بڑی ہے، ترٹ گئی ہے ساری۔ اتنے 2 کلو دے پتھر ہیں، موٹر سائیکل جنا لنگھ دے تو ٹائر تلے آویں تو بندہ ہی ڈھے پوندے۔ مریض دا مسئلہ بڑھدے، مریض نہیں پیچھو بہ سکتا، کئی واری بندے ڈٹھے نہیں تھا۔ بڑا مسئلہ ہے سڑک دا، سڑک کافی عرصے ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی نہیں دی دیکھ بھال کرن والا۔ تے مہربانی کیتی ونجے سڑک دی مرمت یا مکمل بڑی ونجے، بڑا مسئلہ ہے سارے واسطے۔ اہلیان علاقہ نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں کی دوبارہ سے تعمیر نو کی جائے۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی ٹھل حمزہ۔ اوکاڑا میں ریلوے انتظامیہ نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کی دھجیاں اڑا دی۔ ریلوے ٹریک کے قریب ہرے بھرے درختوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ اوکاڑا میں ریلوے انتظامیہ کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی مہم کلین اینڈ گرین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ یہاں اوکاڑا میں ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ بہت ہی پیارے چھوٹے چھوٹے باغیچے لگے ہوئے تھے جو عرصہ دراز سے یہاں پر قائم ہے۔ یہاں کے علاقہ مکینوں کو ان درختوں سے ایک طرف تو سایہ مہیا ہوتا تھا، دوسری طرف یہ بہت ہی اچھی آب و ہوا کا مرکز تھے۔ ریلوے انتظامیہ نو چاہیے کہ درختوں کا قتل جڑا کر رہی ہے بند کیتا جاوے۔ ایڈے ایڈے موٹے ایڈے پارے درخت جڑے آج تو 20 سال پرانے درخت نے وہ کٹے جا رہے ہیں۔ اگر یہ درخت جی ریلوے آرڈر دے وچ آندے نے تو انہوں چھانگیا جاوے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی آرڈر نظر نہیں آتا تے درخت کٹ دیتا جڑاں دے اتوں۔ کروڑاں ارباں روپے خرباں روپے جڑے حکومتاں جڑیاں درختاں لگان تے لاندیاں نے تے ریلوے انتظامیہ جڑے درخت کٹا رہی ہے
لہذا ظلم اور قتل جڑا درختوں کا بند کیتا جاوے۔ उकाड़ा की आवाम ने इन दरख्तों के कत्लेआम पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए वजीर आजम इमरान खान से ये अपील की है कि दरख्तों का कत्लेआम फिलफौर बंद करवाया जाए और इन महकमे में जो भी इस काम में मुलविस है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ शाहिद खोखर, सच न्यूज, उकाड़ा। लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले मूवी मेकर्स फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली कॉमर्स कॉलेज से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस से इख्तिताम पजीर हुई। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट। फोटोग्राफर एंड मूवी एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली कॉमर्स कॉलेज से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो कैटरिंग वाले, लाइटिंग वाले, साउंड वाले, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए लोग, इनका कोई ख्याल करो। हमारा रोजगार बहाल करो, हमारा माशी कत्ल बंद करो। हम लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं और 3 माह से शादी हाल बंद होने से हमारा रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 माह हमने भूख, प्यास और जो तकलीफ से काटे हैं, ये हमें पता है, ये हमारे खुदा को पता है। मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके ये 1 अगस्त से पहले इसको बहाल किया जाए शादी हाल वालों को। जिस तरह हुकूमत ने बाकी कारोबार एसओपीज के तहत खोले हैं, इसी तरह शादी हाल्स को भी एसओपीज के तहत खोलें ताकि हमारा रोजगार बहाल हो सके। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना थी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के अलावा आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जोब, बारखान, लोरालाई और मुसाखिल में बारिश की तवक्को है। पंजाब, अटक, जेहलम, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, टेक्सला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, सरगोधा, बियावाली, खुशाब और फैसलाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। लिया, भक्कर, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिंध सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कराची, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और मिट्टी में हल्की बारिश का इम्कान है। कोरोना वबा के दौरान पुलिस का किरदार हरावल दस्ते का रहा। जब तमाम दफातर बंद रहे, पुलिस स्टेशन और डीपी ऑफिस खुले रहे, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां भी निभाई जाती रहीं। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। अमन हो या जंग, कुदरती आफत हो या कोई वबा, वाहिद इदारा पुलिस ही है जिनके फराइज में कभी वक्फा नहीं आया। कोरोना वायरस जैसी जानलेवा वबा में पुलिस एहलकारों ने फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया। लोगों में आगाही पैदा करना हो या समाजी फासला बरकरार रखवाना या हो लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने की बारी, पुलिस ने अपने फराइज बखूबी इंजाम दिए। जब वबा के खतरा के पेश नजर तमाम सरकारी इदारों को बंद कर दिया गया तो पुलिस स्टेशन खुले रहे, सर्विसेज भी जारी रही, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी रही। कोविड-19 की जो क्राइसिस है 21 मार्च से स्टार्ट हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ताला लिया पुलिस और पंजाब पुलिस अपनी तमाम तर रूटीन के जो मामूलात हैं उसके साथ साथ हमने कोविड-19 को भी फेस किया। अब जबकि कोरोना वायरस की वबा अरूज पर है, फिर भी पुलिस स्टेशन समेत डीपी ऑफिस भी खुला है और रोजाना की बुनियाद पर लोगों के मसाइल हल करने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। जेहलम में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अरशद ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन और मास्क की अफादियत से मुताल्लिक आगाही दी। ट्रैफिक पुलिस जेहलम के ज़ेर एहतमाम ट्रैफिक आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के जरिए कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से रोकने और एक जानलेवा खेल वन व्हीलिंग के बारे में आगाही फराहम की गई, जबकि बगैर मास्क के सफर करने वालों में भी डीएसपी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क तकसीम किए गए। लोधरा में मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए। तकरीब में एसओपीज का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। नदीम पीरजादा की रिपोर्ट। लोधरा में मोटरवे पुलिस बीट नंबर 20 डीएसपी सैयद रिजवान शाह की क़यादत में अवामी खिदमात में पेश नजर आने लगी। मोटरवे पुलिस ने मुखैर हजरात के तावन से मुस्तहिक शहरियों में मुफ्त हेलमेट तकसीम करने का सिलसिला भी तेज कर दिया। मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, सबने मिलकर ये इस तकरीब का इनेकाद किया। यहाँ जो मुस्तहिक लोग थे उनमें हेलमेट तकसीम किए गए
اور ان ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کو اس کی حفاظت کریں. آج یہ ہیلمٹ کی تقسیم کا مقصد لوگوں کو یاد دہانی کرانا تھا کہ جب بھی موٹر سائیکلسٹ یہاں پہ آئیں تو اپنے ہیلمٹ کو لازم کریں، کیونکہ ہمارے اس علاقے میں سب سے زیادہ انسیڈنٹ موٹر سائیکل سواروں کے ہو رہے ہیں. مستحق شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کرنے کا مقصد شہریوں اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنانا ہے. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ندیم عباس پیرزادہ، نمائندہ سچ نیوز، لودھرا. جنوبی پنجاب کا صحت افزا مقام فورٹ منرو قدرتی حسن سے مالا مال ہے، لیکن دشوار گزار راستوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہونے کی وجہ سے آنے والے سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جنوبی پنجاب کا مری یعنی کہ فورٹ منرو قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جس کے باعث ملک بھر سے سیاح موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے فورٹ منرو کا رخ کرتے ہیں. دشوار گزار راستے اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی دفعہ حادثات رونما ہو چکے ہیں، لیکن مقامی انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو 1112 کا آفس نہ ہونے کی وجہ سے حادثات کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں. مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لینڈ سلائیڈنگ کے نقصانات سے بچنے کے لیے روڈ کے دونوں اطراف پتھر تو رکھ دیے ہیں، لیکن شدید لینڈ سلائیڈنگ کے دوران کئی دفعہ حادثات رونما ہو چکے ہیں. حادثات وقوع پذیر ہونے کی صورتحال میں ریسکیو 1112 ڈیرہ غازی خان کو فورٹ منرو آتے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، جس کے باعث طبی امداد جلدی نہ ملنے کی وجہ سے کئی قیمتی جانوں کا زیاں ہو چکا ہے. علاقہ مکینوں اور سیاحوں کی جانب سے ریسکیو 1112 کا فورٹ منرو میں آفس قائم کرنے کی اپیل کی گئی. علی رضا امدانی، سچ ٹی وی، فورٹ منرو، ڈیرہ غازی خان. جدید ٹیکنالوجی کے باعث روایتی کھیل وقت کے ساتھ معدوم ہونے لگے. ماضی میں دیہاتوں میں کھیلے جانے والے کھیلوں کی جگہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیمز نے لے لی. مزید جانتے ہیں یاسر نائٹ کی اس رپورٹ میں. سکول کے چھٹیوں کے دنوں میں یہ کھیل اپنے عروج پر ہوتے تھے. مائیں گھروں کا کام کاج اور کھانا پکانے میں مصروف رہتی اور بچے اپنا تمام وقت انہی کھیلوں میں مصروف رہتے تھے. کھیلوں کے دوران کچھ ایسے بول بھی ہوا کرتے تھے جنہیں یاد کر کے دہرانا ضروری ہوتا تھا. بچے کھیل کے ساتھ ساتھ اس کھیل کے متعلق بول کو بھی یاد کیا کرتے تھے. کوکڑا چھپاکی میں ایک بچے دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے. کسی کو آگے پیچھے دیکھنے یا اشارے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ایک بچہ کپڑے کو بل دے کر کوڑا سا بنا لیتا اور دائرے کے پیچھے گھوم کر چکر لگاتا تھا. گرام دیہات اور شہر کی گلیوں کوچوں کا بہت مقبول کھیل تھا، جسے مختلف لڑکوں پر مشتمل 2 ٹیمیں کھیلا کرتی تھی. لڑکوں کی تعداد کافی ہوتی تھی. اس کھیل کے لیے ایک ربڑ کی گیند اور مٹی کے برتنوں اور مٹکے وغیرہ کے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے جو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھے جاتے کہ وہ ایک چھوٹا سا مینار دکھائی دیتا تھا. اس کھیل کا آغاز یوں ہوتا تھا کہ کچھ فاصلے سے گیند کے نشانے سے اس مینار کو گرایا جاتا تھا اور پھر اسے دوبارہ کھڑا کیا جاتا تھا. جب کوئی کھلاڑی مینار بنانے کی کوشش کرتا تھا تو اسے مخالف ٹیم کے کھلاڑی اس گیند سے شدید ضرب لگاتا. جو ٹیم مینار بنا لیتی تھی وہ جیت جاتی تھی. آنکھ مچولی شراروں سے بھرے اس کھیل کو گھریلو کھیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، جسے گھر کے سبھی بچے اور بڑے ایک ساتھ گھر میں کھیل سکتے تھے. اس کھیل کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کھیلنے والے اپنے درمیان میں سے ایک فرد کو چن لیتے تھے جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی تھی. اسے دیگر کھلاڑیوں میں سے کسی ایک کو پکڑنا ہوتا تھا. دیہات کے پرسکون ماحول میں دیگر دیسی کھیل بھی شوق سے کھیلے جاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کھیل ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ انٹرنیٹ، کمپیوٹر گیمز اور دیگر سوشل میڈیا لے رہے ہیں. کیمرامین عبدالحمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور. گرمیوں کا خاص تحفہ گنے کا رس انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے. سمندری میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گنے کے جوس کی مانگ بھی بڑھ گئی. رپورٹ کر رہے ہیں شہباز بدنی. سمندری میں بھی گرمی کا موسم اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ جاری ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ہر شخص کسی نہ کسی جتن میں مصروف نظر آتا ہے. گرمی کے توڑ کے لیے گنے کے رس کی بھی مدد لی جا رہی ہے اور یہ گنے کا رس فرحت اور تازگی بخشنے کے حوالے سے دیگر مشروبات پر سبقت لیا نظر آتا ہے. گرمیوں میں یہ جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے تو سردیوں میں بھی بغیر برف کے اسے پینا کافی فائدہ مند ہوتا ہے. گنے کا رس لذیذ اور میٹھا ہونے کے ساتھ انتہائی فائدہ مند اور صحت کے لیے کسی دوسرے سپر فوڈ سے کم نہیں ہے. طبی ماہرین کے مطابق گنے کے رس یرکان، موٹاپا اور نزلہ زکام کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. کیمرامین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، سچ نیوز، سمندری.
तरक्की और तब्दीली से नाआशना और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात और रानाइयों से महरूम हजारों लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके पास घर है न शहरियत। उर्फ आम में उन्हें खाना बदोश कहते हैं। मुल्क भर की तरह इस तबके के कुछ अफराद कोट सुल्तान में भी खैमजन हैं। कई दहाइयों की तरक्की व तब्दीली से नाआशना और जिंदगी की बुनियादी सहूलियात और रानाइयों से महरूम नाबलद हजारों लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके पास न घर है न शहरियत और न ही शनाख्ती कार्ड। उर्फ आम में इन्हें खाना बदोश या पक्की वास कहते हैं। तपती धूप हो या कपकपाती सर्दी, सड़क किनारे या वीरान जगहों पर खुले आसमान तले खैमजान होकर अपना बसेरा और ठिकाना बना लेते हैं और हर वक्त जगह छिन जाने के खौफ के साथ रोजी रोटी के लिए मुख्तलिफ जतन करते हैं। लेकिन कोरोना ऐसी वबाई अमराज हूँ या नागहानी आफात, इस तबका का सिलसिला रोजगार मफकूद हो जाता है जिसके बायस इनकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाता है। रेलवे स्टेशन कोट सुल्तान के नजदीक खैमजान झुग्गी नशीनों ने अपना दुखड़ा बयान करते हुए कहा, गरीब लोग कई मेहनती मजदूरी लोग कराना ले साड़ी न कोई मेहनत मजदूरी पे लगती है ना सब कहीं पासे वंजन पे लेना गाल किसी दे। असा गरीब लोग हैं, साड़ी कोई इमदाद करो, तावन करो, साढ़े निके निके बच्चे असा गरीब असा कुलियाबाद असा न मेहनत है न मजदूरी न साढ़े कुछ जमीन है न कोई मिल्क है। सा गरीब बेचारे साड़ी जिम्मे दे निके निके बच्चे ओ बुक मरते न साहब बुक तो मर दो कुलिया दे बच्चे लुके दे प्यों से साहब को निकलाने कोई नहीं देना। असा गरीब है को आज़ादी के 73 सालों के दौरान हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, लेकिन इन झुग्गी नशीनों की तकदीर न बदली। बेहिसी का ये आलम है कि ये तबका इंसानी हकूक की तंजीम समेत हुकूमती अवाम की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल है। खुले आसमान तले अपने अल्लाह के भरोसे पर बैठे ये खाना बदोश आज भी किसी मसीहा के मुंतजिर दिखाई देते हैं। कैमरा मैन मलिक नदीम के साथ सदाकत अली खान, सच न्यूज, कोट सुल्तान लिया। पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के नवाही गांव में 9EB में एक खानदान ऐसा भी है कि जो न सिर्फ मुआशी बदहाली का शिकार है बल्कि अपने अकलौते बेटे के पांव का इलाज कराने से भी कासिर है। गरीब वालिदैन बेटे की जिंदगी बचाने के लिए हुकूमत और मुखय्यर हजरात की इमदाद के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। ये है आरिफ वाला के नवाही गांव 9EB का रहायशी गरीब मेहनतकश मोहम्मद इकबाल, जिसका अकलौता बेटा मोहम्मद आफ्ताब पांव की माजूरी के करीब पहुंच चुका है। अपने वालिदैन का पेट पालने की खातिर मजदूरी करते हुए आफ्ताब का पांव जरी मशीन ने कुचल दिया था, जिसकी वजह से वो मुनासिब इलाज न होने की वजह से चारपाई तक ही महदूद होकर रह गया है। मैं गरीब बंदा जी, मेरे पुत्र दी लत्त छैलड़ च आ गई ते लखा रुपया डॉक्टर मांगदे, किन्ने कोले गरीब बंदा मैं, एक टाइम दी रोटी भी नहीं लभदी ते मेरे हुकूमत अगे अपील है इनका इलाज किया जाए। अपने लखते जिगर को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए लाखों रुपए दरकार हैं, मगर गुर्बत आड़े आ जाती है। घर में गुर्बत का आलम ये है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। जो पूंजी सी ला चुके हैं ते वेखी ना जेड़े डॉक्टरां कोले जाने आ ते लखां पैसे मंगदे ने ते साडे कोले गुंजाइश कोनी कि साडे ते एक टाइम दी रोटी कोनी ते असीं बच्चे दा इलाज की करा सकदे। मेरा भाई सी को एक ओंदे शैल च आके लत्त खराब हो गई है ते सानू इनदी बहुत जरूरत हैगी है। सानू बहुत प्यारा है अपना भाई ते इसलिए साडी हुकूमत अगे अपील है कि इनदा इलाज करवाया जावे। गुर्बत की चक्की में पिसे इस गरीब वालिदैन की एक ही अपील है कि इनके अकलौते बेटे का इलाज करवाया जाए ताकि वो उनका सहारा बन सके। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। वजीर आजम के आबाई इलाके जिला मियांवारी के नवाज स्वांस के रिहायशी गरीब मजदूर की 6 साल की कमसिन बेटी बाजू के आर्जे में मुब्तला है। वालिदैन बेटी के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मियांवाली के नवाही इलाका सवास के रिहायशी मजदूर अजीजुल्ला खान की 6 साला मासूम बच्ची किंजा का बाजू गर्म पानी गिर जाने से जल गया। मासूम निगाहें साहिब दिल लोगों की राह तक रही हैं। ऑपरेशन इस्लामाबाद ना पिंडी इस्लामाबाद ना मैं यहाँ पे गरीब जो बंदा मजदूर आदमियाँ लिहाजा मेरी बच्ची ना सही तरीके से इलाज कराया। मासूम किंजा के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की खतीर रकम दरकार है। वालिद बेरोजगार है। किंजा के अहले खाना ने वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और महकमा सेहत मियांवाली के आला अफसरान से इलाज मुआवजा में मुआवनत की अपील की है। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, मियांवाली।
लोधरा की तहसील दुनियापुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने जाली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की अद्वियात, केमिकल्स और पैकिंग करने वाली मशीन बरामद कर ली और फैक्ट्री को सील कर दिया। काजिम अब्बास की रिपोर्ट। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस विंग की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर सैयद वसीम हसन ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस विंग की टीम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंसूर उल हक, ड्रग इंस्पेक्टर जुबैर भट्ट और पुलिस नफरी के हमरा थाना जलाराय के इलाके मौजा डेसी में जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री में जैली वेटरनरी अद्वियात तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई की जाती थी। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की जैली वेटरनरी अद्वियात, जलोड गाड़ी, जैली अद्वियात बनाने वाले केमिकल्स और पैकिंग करने वाली मशीनें भी बरामद हुई। जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मुलाजमीन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन ने जैली वेटरनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री को सील करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद वसीम हसन का इस मौके पर कहना था कि यह जैली वेटरनरी अद्वियात मुल्क भर में सप्लाई की जा रही थी और जल्द ही फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंसूर उल हक का इस मौके पर कहना था कि जैली वेटरनरी अद्वियात तैयार करने वाले मुलजमान मार्केट से सैंपल लेते थे और फिर किसी भी दवाई की कॉपी तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई करते थे। उन्होंने मजीद बताया कि बरामद होने वाली जैली अद्वियात की मालियत लाखों रुपए बनती है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। कबीरवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। पुलिस थाना सदर कबीरवाला ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से मनशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। इस मौका पर SHO हसन इकबाल का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में मनशियात बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एहतशाम अली की रिपोर्ट। DPO साहिवाल अमीर तैमूर बुजदार की हिदायत पर SDPO सिटी सर्कल मलक दाऊद की जेरे निगरानी SHO थाना गल्ला मंडी मियां आसिफ वट्टू ने अपनी तैनाती के पहले हफ्ते में ही दबंग कार्रवाई की। मुलजमान हुमायूं और मोहम्मद फयाज को पाबंदे सलासल कर दिया। SHO थाना गल्ला मंडी मियां आसिफ वट्टू ने कहा कि या तो जराइम पेशा अफराद अपने काले धंधे बंद कर दें या इलाका छोड़ जाएं, नहीं तो उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। SHO आसिफ वट्टू की इस कार्रवाई को DPO साहिवाल ने सराहा और शाबाश दी। मलिक इत्शाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।